Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, yesterday we discussed in detail what actually are writing skills, and in that very part we discussed the first part of the paragraph writing. What is paragraph writing? What are the main types of paragraph writing? And the very important thing about the paragraph writing is how to write a paragraph, how to write a beautiful paragraph. That means the structure of the paragraph. As far as the structure is concerned, paragraph has been divided into three main parts. First one is the topic sentence, second one is the supporting ideas or details, and the third one is the concluding sentence. Therefore, as far as the paragraph is concerned, these three main elements, these three main parts are very important. Now, to somehow we discussed topic sentence yesterday. What is topic sentence? Sentence outlines the main idea that will be present in the paragraph. That means that is a very important sentence because the whole paragraph depends upon that very topic sentence. The whole paragraph depends upon that very sentence. That means we should know how to write that very topic sentence. We should present the general idea. We should present the main idea of that very topic which we have to choose in our examination. And in that topic sentence, or rather we can say in a paragraph structure, while writing these three parts, we should also keep in mind the four elements that are very useful, because while writing these three parts we should always keep in mind the four elements of paragraph, that is unity, order, coherence, and completeness. And as far as the topic sentence is concerned, always the topic sentence should be unified, around the main idea, with the supporting sentences, with the supporting details, with the supporting sentences providing details and discussion in order to write a good topic sentence. That means अगर हम topic sentence की बात करें तो topic sentence जो है बहुत ही important sentence होता है, because the whole paragraph depends upon that very sentence. उसके बाद जो है उसी टॉपिक सेंटेंस को खोल के हमें लिखना है, इसीलिए हमें यूं ही जो है ये टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए. तो टॉपिक सेंटेंस में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, मेन आइडिया लिखना है. जैसे मैंने कल भी आपसे कहा है कि अगर ऑनेस्टी पे जो है टॉपिक लिखना है तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी दैट इज़ द टॉपिक इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज़ द कंट्रोलिंग आइडिया. फिर जो है इसी टॉपिक सेंटेंस को हमें खोल कर लिखना है. उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है. सपोर्टिंग आइडियाज़ में जो है हमें एग्जांपल्स लिखनी है, हमें जो है इंस्टेंसेस लिखनी है, हमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं, तब जाके जो है ये कंप्लीट होगा. इसीलिए टॉपिक सेंटेंस जो है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें यूनिटी होनी चाहिए. दैट मीन्स यूनिटी इन पैराग्राफ बिगिनस विद द टॉपिक सेंटेंस. अगर हम यूनिटी की बात करें, बिकॉज द होल पैराग्राफ शुड बी यूनाइट, शुड हैव ए यूनिटी. और इसकी जो बुनियाद है वो स्टार्ट से ही जो है पैराग्राफ के स्टार्ट में, पैराग्राफ के इब्तिदा में, दैट इज़ द टॉपिक सेंटेंस से ही शुरू होनी चाहिए. Every paragraph has one single controlling idea that is expressed in its topic sentence, which is typically the first sentence of the paragraph. तो टॉपिक सेंटेंस जो है ऑलवेज जो है फर्स्ट सेंटेंस ही होता है. तो फिर हर एक पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया होता है जिस पर जो है पूरा पैराग्राफ डिपेंड करता है. तो उस पैराग्राफ को देखकर जो है हमें याद रखना चाहिए कि वो जो है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, वो एक तरह जो है एक जैसा दिखना चाहिए. क्योंकि पैराग्राफ जो है मैंने पहले ही कहा, अगर पैराग्राफ जो है किसी के बारे में है तो उसी के बारे में जो है हमें पूरी डिटेल लिखनी है, चाहे वो टॉपिक सेंटेंस हो, चाहे वो सपोर्टिंग डिटेल्स हो, चाहे वो कंक्लूडिंग पोर्शन हो. तो इट शुड बी यूनिफाइड अराउंड द मेन आइडिया. जो मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस में है तो उसी के इर्द गिर्द जो है ये घूमना चाहिए. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड वन इज द सपोर्टिंग डिटेल्स. अब पैराग्राफ का जो है हमें पहला टॉपिक जो है दैट इज डिटेल, वी कैन से द टॉपिक सेंटेंस हमने लिखा है. अब इसके आगे हम क्या करें, इसके आगे हमें खुद इसी टॉपिक सेंटेंस पे ही हमें एक क्वेश्चन करना है. लाइक अगर हमने बात की ऑनेस्ट इज द बेस्ट, हाउ ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, या एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन.
व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ आइस हाउ टू कंट्रोल दैट एयर पोल्यूशन। दैट मीन्स इसके जवाब में आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, तो उस डिटेल को हमें जो है एक और एलिमेंट याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। नाउ व्हाट इज सपोर्टिंग डिटेल्स? सपोर्टिंग डिटेल्स मीन्स part of paragraph that presents details, factors, examples, instances, quotes, arguments, consequences, we can say control measures. These are the main points of the supporting details जो आपको लिखना है इस टॉपिक सेंटेंस को, we can say इस टॉपिक सेंटेंस के सपोर्ट में ये चीज़ें लिखनी है। अगर आपने टॉपिक सेंटेंस में लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अब इसको क्लियर करना है, अब इसको जो है हमें एक शेप देनी है, अब इसको हमें प्रूव करना है हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन की आपने डेफिनेशन लिखी है, एयर पोल्यूशन इज द वर्ल्ड वाइड डिजास्टर। अगर आपने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है एयर पोल्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड डिजास्टर है, तो कैसे है, क्यों है, इसके जवाब में जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, इसमें जवाब में जो है काजेस भी आ सकती है, इसके जवाब में कुछ फैक्टर्स भी आ सकते हैं, इसके जवाब में जो है जो भी आपके पास होगा उसको, लेकिन उसमें और एक एलिमेंट याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। जो मैंने पहले ही कहा कि 4 एलिमेंट जो है वो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए पैराग्राफ। तो इसमें पैराग्राफ में जो है एक और पॉइंट याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर रेफर्स द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंस, वेदर you should choose chronological order of importance or any other. A solid paragraph has a definite organization. That means अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर जो है एक तरीका होता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज यूर सपोर्टिंग सेंटेंस। आपके पास जो है डिटेल है, लेकिन इस डिटेल को कैसे आप जो है, पहला सेंटेंस क्या होगा टॉपिक सेंटेंस के बाद, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, तो उसके बारे में जो है आपके पास जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपके हिस्ट्री का कोई जो है टॉपिक मिला है या नैरेटिव पैराग्राफ मिला है, तो उसमें जो है क्रोनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अगर आपको नैरेटिव पैराग्राफ मिला है, तो नैरेटिव पैराग्राफ में सपोर्टिंग डिटेल जो है एक क्रोनोलॉजी के तहत आपको लिखनी है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस तरह। लेकिन अगर आपको कोई और सेंटेंस मिला है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, जिसमें इंपॉर्टेंस है, पहले क्या, लाइक एयर पोल्यूशन है, उसमें सबसे मेन काज क्या है, उसके बाद वाली काजेस क्या है। इसी तरह जो है अगर आपको कोई और ऑनेस्टी, उसमें भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होगा, हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे पहले सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे, पहला वाला सेंटेंस लास्ट पर लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो अटेंशन है रीडर्स जो है वो कंफ्यूज होंगे, और टू अवॉइड दैट वेरी कंफ्यूजन, दैट मीन्स ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर हेल्प्स द रीडर ग्रास्प द मीनिंग, ग्रास्प मीनिंग क्लियरली। अगर अच्छी तरह से ऑर्डरिंग होगी तो इससे जो है मीनिंग जो है क्लियर होगी, तो मीनिंग क्लियर होगी, तो इससे मीनिंग क्लियर होगी, दैट मीन्स आपको क्या करना है, डिटेल्स, फैक्टर्स, आर्गुमेंट्स, सपोर्टिंग डिटेल्स, ये चीज़ें जो है आपको फिल करनी है, या आपको फिल करनी है। अगर हम बात करें सपोर्ट डिटेल, दैट मीन्स, लेकिन ऑर्डर इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के तहत जो है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हो, या एनी अदर ऑर्डर, लेकिन सॉलिड पैराग्राफ में जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है रीडर जो है ग्रास्प योर मीनिंग, आपने लिखा क्या है। और एट द सेम टाइम जब आप सेंटेंस लिखेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस, मैंने पहले ही कहा ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी, जितनी आपके पास डिटेल है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना आप याद रखें कि जब आप सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे तो गंदगी इसमें नहीं डालनी चाहिए। अगर आपके पास 10 ही पैराग्राफ या 10 ही सेंटेंस बेहतरीन है, तो वही 10 लिखें, बेहतर है। लेकिन ये जो है, जैसे हम गंदगी जो है इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन में, हमारे पास जो है हमारे पेजेस फिल होने चाहिए, इससे जो है आपकी जो ग्रिप है पैराग्राफ पे, वो जो है हट जाएगी। तो बेहतर यही है, कोशिश करें, अगर कम ही है लेकिन वो जो है टू द पॉइंट होनी चाहिए, दे शुड बी रिवॉल्व्ड अराउंड द टॉपिक, वो टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। दैट मीन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यूनिटी इंपॉर्टेंट है। यूनिटी से जो है हमें हटना नहीं चाहिए थ्रू आउट द पैराग्राफ, चाहे हम टॉपिक सेंटेंस की बात करें या कंक्लूडिंग पोर्शन तक की बात करें, तो यूनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिटी जो है मेंटेन रखने के लिए जो है हमें ये याद रखना है कि कोशिश करनी चाहिए हमें वही सेंटेंस लिखने हैं जो टू द पॉइंट है, जो रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक है। हुआ अब ऑर्डर के बारे में। अब और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जब आप सपोर्टिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स लिख रहे हैं, तो कोहेरेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोहेरेंस होता क्या है। कोहेरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स यूर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। कोहेरेंसी जो है ये एक क्वालिटी है राइटिंग की, राइटिंग स्किल्स की। तो इससे जो है आपकी राइटिंग अंडरस्टैंडेबल बन जाती है, इससे जो है ये दूसरों को समझ में आती है। बिकॉज जब आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तो ये जो है ये नहीं लगना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस से मेल नहीं खाता, ये जो है एक जैसा दिखना चाहिए। चाहे हम टॉपिक सेंटेंस की बात करें या कंक्लूडिंग, ये जो पहले ही कहा पैराग्राफ जो है उसमें कोहेरेंसी इंपॉर्टेंट है। तो कोहेरेंसी जो है टॉपिक सेंटेंस लेकर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है जैसे लगना चाहिए एक ही सेंटेंस है। इसमें हम बहुत सारे सेंटेंस इस्तेमाल करें, लेकिन कोहेरेंसी का मतलब होना चाहिए कि एक जैसा दिखना चाहिए। इसमें ये नहीं लगना चाहिए ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट है, हमने जो है किसी तरह हमने ये चिपका है। इस तरह पैराग्राफ होना चाहिए जैसे हमने इस पैराग्राफ को जैसे एक जैसा एक ही सेंटेंस है इस तरह का दिखना चाहिए। तो इसमें कोहेरेंसी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेंटेंस विद ए पैराग्राफ नीड टू कनेक्ट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज ए होल। सेंटेंसेस जो है एक दूसरे को जो है इनको कनेक्ट करना है, इनको वर्क टुगेदर एज ए होल, एज ए यूनाइट बनाना है। तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे टू अचीव कोहेरेंसी इज टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स। कोहेरेंसी को अचीव करने के लिए आपके पास और एक हुरबा है, आपके पास और एक बेहतरीन तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन वर्ड। Now what are transition words? Transition words are those words which bridges the gaps between the sentence, या which connects the sentence, या which combines the sentences in a paragraph. Transition words वो words होते हैं जो हम एक sentence को दूसरे sentence से मिलाते हैं, मदद करते हैं मिलाने की। तो ये these words create bridges from one sentence to another. ये जो है ब्रिज का काम करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में मिलाने का काम करते हैं, तो ब्रिज का काम करते हैं। तो इसीलिए जो है हमने सपोर्टिंग डिटेल्स की बात की, तो सपोर्टिंग डिटेल्स में हमने यही लिखा है कि हमें चाहे वो फैक्ट्स की बात करें, चाहे हम पैराग्राफ में फैक्ट्स की बात करें, डिटेल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, कोट्स की बात करें, आर्गुमेंट्स की बात करें, ये सब जो है ये सपोर्ट करनी चाहिए मेन आइडिया को। मेन आइडिया दैट इज द टॉपिक सेंटेंस। बट एट द सेम टाइम जो है ये हमें याद रखना है, जब हम मेन आइडिया की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिटी है, ऑर्डर है, कोहेरेंस है और कंप्लीटनेस है। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिटी की, ऑर्डर की, इन दो के बारे में हमने बताया है। अब कोहेरेंस की हम बात करें तो कोहेरेंस को अचीव करने के लिए जो है ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोहेरेंसी को अचीव करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। हियर आर सम ट्रांजिशन वर्ड्स। कहाँ पर हम कौन सा ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इनके बारे में हम बात करें। लाइक सबसे पहले अगर हमें ऐड करना हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को मिलाना हो, ऐड करना है, तो उसके लिए एंड, सो, बिसाइड्स या फर्दर मोर, एंड, बिसाइड्स, मोर ओवर, इन एडिशन टू, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में मिला सकते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जांपल्स देनी है तो इसके लिए जो है फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इन फैक्ट, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जांपल्स फॉर इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल है, इन फैक्ट। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर एक दूसरे के साथ, तो ऑल्सो, लाइकवाइज, सिमिलरली, साइमल्टेनियसली, दैट मीन इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं बिकॉज इनका बखूबी आपको पैराग्राफ में इस्तेमाल करना ज़रूरी। अगर आपको कंट्रास्ट हट के, तो इसके लिए जो है ऑल्दो है, येट है, बट है, हाउएवर है, देयरफॉर है, डिस्पाइट ऑफ है, दैट मीन इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समराइज, एंड में समराइज करना है, वहाँ पर आपको लिखना है इन शॉर्ट, टू सम अप, या इन अदर वर्ड्स, या एट लास्ट, या इन नटशल, या देयरफॉर, इन अदर वर्ड्स, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ और वर्ड्स भी हैं, लाइक अगर हमें टाइम दिखाना है, लाइक मीन्स टू शो टाइम, टाइम दिखाने के लिए अगर आपको, तो उसमें जो है आफ्टर है, बिफोर है, ड्यूरिंग है, फाइनली है, मीन वाइल है,
इमीडिएटली है, अनटिल है, देन है, अर्लियर है, इनका आप इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको प्लेस और डायरेक्शन को शो करना है तो फिर इसके लिए भी है, एबो है, बिलो है, बियॉन्ड है, क्लोज है, नियर बाय है, टू द लेफ्ट ऑफ है, टू द राइट ऑफ है, या नॉर्थ, टू द ये डायरेक्शंस, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, ये सब जो है, या अपोजिट है, नियर बाय है, हियर है, दियर है, ये सब जो है आपको किस लिए इस्तेमाल करने, ये सब जो है टाइम मेंशन करने के लिए। अगर आपको ट्रांजिशन वर्ड्स, अगर आपको इंडिकेट लॉजिकल रिलेशनशिप बनानी है तो उसके लिए जो है अकॉर्डिंगली है, एज ए रिजल्ट है, बिकॉज है, बिकॉज फॉर दिस रीज़न है, सिनस है, सो दैट है, हैनस है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं, लाइक नो डाउट है, ऑन द अदर हैंड है, बिफोर, दीज आर इन नटशेल, दीज आर ऑल ट्रांजिशन वर्ड्स विच ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के बीच में जो है ये गैप्स को जो है फिल करते हैं, ब्रिज करते हैं, ब्रिज अप करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट जो है, कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले आपको एक और एलिमेंट याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटनेस, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटनेस। नाउ व्हाट इज कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस मीन्स ए पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड। जब आपने ये सब सपोर्टिंग डिटेल्स एक ऑर्डर के तहत लिखें, एक कोहेरेंसी के तहत लिखें, और उसके बाद जब आपको लगा कि नहीं अब कंप्लीट होने वाला है, तो तब जाके जो है आपको ये लगा क्या ये कंप्लीट है या नहीं, तब दैट मीन्स ये मोहर लगानी है, ये छाप लगानी है, क्या ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स कंप्लीटनेस मीन्स पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड, उसमें जितना सपोर्टिव डिटेल्स होना चाहिए वो हुआ है। इफ ऑल सेंटेंस क्लियरली एंड सफिशिएंटली सपोर्ट द मेन, देन योर सेंटेंस इज, देन योर पैराग्राफ इज कंप्लीट। जब आपके सपोर्ट में जो टॉपिक सेंटेंस आपको मिला है उसके सपोर्ट में आपके पास जितनी भी डिटेल है, उस डिटेल को आपने अच्छी तरह फिल किया है, अच्छी तरह कंप्लीट किया इन एन ऑर्डर, उसमें कोहेरेंसी, उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है, देन यू कैन क्लियरली से दैट इट सपोर्ट्स द मेन आइडिया, इट सफिशिएंटली सपोर्ट्स द मेन आइडिया। जो मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस में हमने लिखा है, इट क्लियरली सपोर्ट्स, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा, टॉपिक सेंटेंस की बात करें या सपोर्टिंग आइडियाज़ और डिटेल्स की बात करें, तो फाइनली जो है हमें कंप्लीटनेस की, क्योंकि टॉपिक तो हमें कहीं ना कहीं एंड करना है, तो एंड करने से पहले, कंक्लूड सेंटेंस से पहले हमें ये याद रखना है क्या टॉपिक सेंटेंस में या सपोर्टिंग डिटेल जो है, क्या ये इसमें कहीं इनकम्प्लीटनेस तो रही नहीं। एब्रप्टली हमें बंद नहीं करना है, बल्कि हमें जितनी भी डिटेल्स इसमें चाहे वो डिटेल हमने भरनी है, कंप्लीट करनी है, फिल करनी है, तब जाके जो है ये टॉपिक मुकम्मल होगा। और फाइनली जो है और एक सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द कंक्लूडिंग सेंटेंस। और अगर हम बात करें कंक्लूडिंग सेंटेंस की, कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने पहले ही कहा, कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले हमें ये लगना चाहिए कि ये पैराग्राफ अब कंप्लीट हुआ है, हो चुका है, इसमें जितनी भी डिटेल्स हमें डालनी थी वो हमने डाल दी। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या है, द कंक्लूडिंग सेंटेंस समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। कंक्लूडिंग सेंटेंस में जितना भी आपने टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स, उसको निचोड़ कर, उसको नटशेल में एक लाइन में आपको खत्म करना है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको एक टॉपिक मिला है, इसमें सबसे पहले हमने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस। हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके सपोर्ट में जो है हमने सपोर्टिव डिटेल्स जो है फिल किए एज पर द ऑर्डर एंड एज पर द कोहेरेंसी। अब ये कंप्लीट हुई। फाइनली जो है आप अपनी एक खुद की एग्जांपल जो है उसमें आप कंप्लीट कंक्लूड से पहले जो है आप अपनी एक एग्जांपल देंगे, आप कोई ओपिनियन दे सकते हैं, आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि हाउ जो है ऑनेस्टी जो है एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन अमल है, तो वो आपका कंक्लूड सेंटेंस बन जाता है। क्या आपकी खुद की कोई आपकी एग्जांपल होगी तो वो आप कंक्लूड कर सकते हैं, या आपको टॉपिक सेंटेंस और उनको मिला के जो है, या आपको एयर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, या कोविड है, इसको मिला के सेंटेंस क्या होना चाहिए, पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद कंक्लूड में जो है आपको यही लिखना है कि नया कुछ। दैट मीन्स इससे जो है असल में कंक्लूड सेंटेंस का मतलब होता है कि कंक्लूड सेंटेंस आपका इस तरह का सेंटेंस, उसके बाद आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है उस कंक्लूड सेंटेंस पे, दैट शुड बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये थोड़ा सा था पैराग्राफ के मुतालिक, आई होप। लेकिन इससे पहले कंप्लीट करने से पहले जो है आपके पास आप एक थोड़ा सा जो है आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि वो जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूं ही जो है आपको कोई पैराग्राफ मिला एग्जामिनेशन में यूं ही स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहला सेंटेंस लिखते हैं तो पहले उसके बाद जो है अब्रप्टली बंद हो जाती है, क्योंकि उस पर हमें जो है थोड़ा फोकस नहीं किया हो। तो फोकस सबसे पहले जो है पैराग्राफ को जहन में, जो भी पैराग्राफ मिला हो
अगर वहाँ पर ऑप्शंस है, सबसे पहले वही ऑप्शन चूज़ कीजिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है। क्योंकि हम जो है दूसरों को देखते हैं, इन्होंने अच्छा लिखा है तो मैं भी लिखूंगा, इन्होंने क्या लिखा है मैं भी वही लिखूँ। नहीं, पैराग्राफ के बारे में जो है सबसे पहले अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो फैक्ट्स डिटेल्स थोड़ी सी जो है आपके जहन में होनी चाहिए, तब जाके आपका पैराग्राफ सही हो सकता है। उसके बाद जो है कोडर, कोडर एक फार्मूला है, उसका भी आप जहन में रख सकते हैं। कोडर का मतलब होता है सबसे पहले कलेक्ट आइडियाज़। जो भी आपको पैराग्राफ मिला है, आइदर ए नैरेटिव वन और ए डिस्क्रिप्टिव वन, उसके बारे में जो है सबसे पहले आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं लिखने से पहले। उसके बाद ऑर्गेनाइज देम, उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, माइंड में ही करना है लिखने से पहले, कि पहले क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लिखते हैं, एक दो सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद अब्रप्टली बंद हो जाते हैं, उसके बाद हमें मालूम नहीं होता कि हमें क्या लिखना है। इसीलिए सबसे पहले जो है हमें आइडियाज़ को कलेक्ट करना है, उसके बाद जो है मन में ही जो है ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाना है, लेकिन वो ड्राफ्ट जो है एक्चुअल राइटिंग नहीं होनी चाहिए। वो ड्राफ्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, क्या इसमें इस तरह हो सकते हैं। फिर एडिटिंग, इस ड्राफ्ट की एडिटिंग भी हो सकती है। CODR, कोडर, कलेक्ट आइडियाज़, ऑर्गेनाइज देम। उसके बाद ड्राफ्ट, आपने थोड़ा सा ड्राफ्ट बनाया, रफ बनाया, उसके बाद एडिटिंग, कहीं पर जो है आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, कहीं पर आपको कुछ वर्ड्स की चेंज करने की ज़रूरत, और लास्ट दैट इज़ राइट द